A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So starting with the analysis video for 2nd of September. The first important topic of the day is simultaneous elections. So government panel banaya gaya hai to study these, to conduct simultaneous polls to Lok Sabha and state assemblies. So इसको study किया जाएगा. Again, ये topic हमारे लिए बहुत important है. And so feasibility क्या है of conducting these simultaneous elections? आपको for and against दोनों nuances पता होना चाहिए. So यहाँ पे just committee की बात की जा रही है. So we'll try to analyze this topic once we have a proper article dedicated on this. So one of the important parts of our culture, you can see Onam season ends. So here you can see artists, they are performing the Pulli Kalli, which is known as the tiger dance in Thrissur. And this marks the end of Onam celebrations. So you can look for the significance of this dance. What does it signify? Governor versus the government. So different states में आपको पता होना चाहिए क्या actually हो रहा है. But this is the broader topic. यहाँ पे talking about fresh friction वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है, बिहार में भी देखने को मिल रहा है. एंड ऑफ लेट हमने बात करी थी कि पंजाब में भी जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है. So fresh discord surfaced between the governors and elected governments in non-BJP ruled states of West Bengal and Bihar on Friday. West Bengal governor decided to discharge the duties of interim vice chancellors of all the universities where full-time VCs they are yet to be appointed. And the Raj Bhavan in Bihar, it has asked the VCs of the state universities to take orders only from the governor. So ये देखा जा रहा है कि students of few state universities जहाँ पे VC की post vacant है, they are facing difficulties in obtaining degree certificates and other documents as well. So as a relief measure, governor in his capacity as the chancellor has decided to discharge the duties of VCs of those particular universities. So बोला जा रहा है कि this is against the autonomy and so अगर ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि basically बिहार के केस में जो principal secretary है to the governor, he is written to the VCs कि obeying the orders of anyone other than the Raj Bhavan, मतलब other than the governor, it is not compatible with their autonomy. So एक साइड ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो purposefully they are creating confusion and recalcitrantly and they're undermining the established autonomies of different universities administrative system. So एक ये रीजन इमर्ज होता हुआ आ रहा है. So यहाँ पे आप बात कर सकते हो जब हम ब्रॉडर टॉपिक की बात कर रहे हैं कि what is the relevance of the office of governor? Is it really required or not required? Can we really abolish the office of governor and things can improve? And again, then significance क्या है of this office? So Assam is one of the unsung hero has been rediscovered in the States. So the person is Mangri Orang. So he was shot by the Britishers 1921 में for leading a fight against the foreign liquor and opium. So this personality becomes very important. And more than a century after, she was shot in Assam's Darang district for leading a fight against foreign liquor and opium. An unsung tea plantation worker has been rediscovered on the stage.
So you can search more about her. So you can see that she is an unsung hero of India's struggle for freedom from British rule, and she was gunned down. She was shot 1921 में for this fight. So definitely she forms an important personality. Her contributions again invaluable, and specifically when we talk about icons from Northeast, so she is one of those personalities. So today we are going to see the launch of Aditya L1 mission, and this would be to understand the problem of coronal heating, coronal mass ejections, flare activities, and dynamics of space weather, propagation of particles and fields. So ये main objective होने वाले हैं of this mission. तो आपको पता होना चाहिए problem of coronal heating क्या है, coronal mass ejections क्या होते हैं, dynamics of space weather क्या होता है. So these are some of the conceptual topics, and it would be launched by the PSLV launch vehicle at 11:50 a.m. So it would be launched today in the morning at 11:50. And इसके अलावा जो और important details थी, again L1 point में इसको launch किया जाएगा, and उस point की Lagrange 1 point की क्या significance है, क्यों हम सिर्फ इसको वहीं पे place करना चाहते हैं, सब पहले हम cover कर चुके हैं. And इसकी mission life होने वाली है 4 months. So these are some of the important details related to it. So we are also getting support from European Space Agency for this mission. So the support would be in the form of 35-meter D-space antennas जो हैं installed over Australia, Spain and Argentina. So technically we'll be getting some support from there as well. सो चाइना में जो हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, उसके क्या रिपल इफेक्ट्स हमें ग्लोबली देखने को मिलेंगे. सो विल टॉक अबाउट दिस. सो दिस इज अ न्यू नॉर्मल, ग्राउंड रियलिटीज चाइना में बात कर रहे हैं. सीइंग इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा स्लोडाउन देखने को मिल रहा है. जब हम बात कर रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन एक मेजर प्रॉब्लम है, चाइना में सिचुएशन ऑपोजिट है. चाइना में जब ग्लोबली हम बात कर रहे हैं कि फेड रेट इंक्रीज कर रहा है, बट चाइना में जो सेंट्रल बैंक है वो अपना पॉलिसी रेट या रेपो रेट उसको रिड्यूस कर रहे हैं. सो अंडरस्टैंडिंग की कॉजेज एंड मैग्नीट्यूड क्या है चाइना के प्रेजेंट डे इकोनॉमिक चैलेंजेस का, वो समझना इंपॉर्टेंट है. नॉट जस्ट क्या चैलेंजेस हैं, क्या करंट सिचुएशन है, बट मैग्नीट्यूड क्या है प्रॉब्लम्स का, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना. सो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है चाइना की इकोनॉमी के साथ वो ये है कि जो ग्रोथ है अभी करंटली, दैट इज अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड, अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनसस्टेनेबल. So this is the real picture in short, and it is expected कि some form of course correction वो लिया जाएगा in the subsequent period. But जैसे कि हमने देखा पहले 2008 के टाइम पे जब global financial crisis हुई, तो चाइना chose the strategy of investing in the infrastructure that included railways, highways, and energy and construction sectors. So उस time पे China chose to do more of capital expenditure. So it swept the core problem जो थी of lack of consumption, regional inequality जो हो रही थी, a lack of social security under the carpet in order to sustain double-digit growth rate. तो उससे कुछ बेनिफिट भी हुए, और जो अगेन रीजनल इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम थी या लैक ऑफ कंजम्पशन था, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है बोल सकते हैं. सो व्हाई इट डिड वाज सिंपल. जो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी ऑफ लीडरशिप इन चाइना, इट हैज डिपेंडेड ऑन क्रिएटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू ग्रेटर नंबर ऑफ सिटीजंस ईयर ऑन ईयर. बट बाय द टाइम जब हम बात करते हैं जी जिनपिंग की, ही केम टू पावर, जो स्टेरॉइड्स थे हैड रन देयर कोर्स एंड वीन ऑफ पीरियड वाज वर्स ऑफ.
तो चाइनीज फाइनेंशियल मार्केट्स दे सफर्ड क्योंकि वहां पे वी सॉ लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट, सिंस जो लोन्स दिए जा रहे थे बिजनेसेस को, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अगेन प्रॉक्सिमिटी, या द फेमस चाइनीज टर्म जिसको बोलते हैं guangsai, which is the nodal networks based on factions, friendships and relationships. तो again objective terms पे on the basis of merit loans को नहीं दिया गया. And then at the same time there was lack of regulatory oversight also. So China right now world की second largest economy है. So again that is why we are discussing this topic also. एंड ये भी है कि चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री भी है. तो जो स्टेटस है डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री का, इससे रिगार्डिंग हम सेपरेटली बात कर चुके हैं. तो चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री मानता है. एंड इसके अलावा वी सी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज जो हैं वो चाइना की ग्रोथ स्ट्रेटजी में एक प्रॉब्लम है. सो वी सॉ कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन, that has changed. We see there was also an acceptance कि जो era of growth है driven by exports, infrastructure spending and big ticket investments, that is now over. तो जो 2008 के बाद स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी उसका अब जो इम्पैक्ट है, फ्रूटफुलनेस है, वो डिक्लाइन हो चुका है. सो चाइना ने जो एरा था विच स्टार्टेड फ्रॉम 2008, इट वाज टर्म्ड इन एन एरा ऑफ न्यू नॉर्मल, जहाँ पे कंट्री इट हैड टू ओवरकम 2.5 decade long habit of enjoying more than 10% growth rate. तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए बेसिकली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी. बट हमने देखा कि जो मेन प्रॉब्लम्स थी उनको साइडलाइन कर दिया गया. सो हायर ग्रोथ रेट की वजह से हमने देखा चाइना में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई, ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की जो इंक्रीज हुई डिस्पोजेबल इनकम अगेन, कि टैक्स पे करने के बाद जो प्राइवेट इनकम होती है हाउस होल्ड्स के पास, उसमें से आप जो टैक्स पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, जितना अमाउंट आपके पास बच गया वो आपकी स्पेंडिंग के लिए आप उसको सेव कर सकते हो, तो उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं. तो चाइना में जॉब्स इंक्रीज हुई, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज हुई. So now with lower than usual rates, new jobs जो हैं they are hard to create. And then aging population is another problem that is in front of China, and that's why we're seeing unemployment numbers be they are on the rise. So आने वाले टाइम में चाइना की जो लेबर कॉस्ट है they are also rising due to wage increase and social security investments. एंड दूसरी साइड भी देख रहे हैं, दूसरी साइड हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बैड इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी बिकॉज देयर इज लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट, इट मेंट कि जो सेक्टर्स लाइक हाउसिंग, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, दे हैव गॉट इनटू द बैड हैबिट ऑफ ओवर प्रोड्यूसिंग फार बियॉन्ड द इमीडिएट प्रोजेक्टेड डिमांड. So as a consequence, in subsectors, we are seeing that they are stuck with inventory without any demand, because again, easy credit availability hamper भी कर सकती है. So इसकी वजह से जो इन्वेंटरी थी वो इंक्रीज हो गई है, बट उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में. So ये रिजल्ट हुआ बिकॉज ऑफ अर्ली सप्लाई साइड रिफॉर्म्स. बट अगेन खाली सप्लाई साइड रिफॉर्म्स से भी चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं. एंड राइट नाउ जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल चॉइस की भी, तो चाइना एक ऐसी कंट्री है, इट इज एन एग्जांपल, जहाँ पे वी आर सीइंग की पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फंक्शन करती है, एग्जिस्ट करती है. तो जो चाइना की एबिलिटी है टू ओवरकम इट्स इकोनॉमिक चैलेंजेस आज के टाइम में, इट हैज आल्सो टू बी अ पॉलिटिकल चॉइस एट द सेम टाइम. तो ये चीजें इतनी स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है चाइना में कि पॉलिटिकल चॉइस भी कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम विल हैव टू मेक दैट, जब आप इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने की बात कर रहे हो. So Mr. Xi Jinping has used one of the terms that is disorderly expansion of capital. So this term, it is not elaborated upon much either, but
its timing of having appeared within a few weeks of the withdrawal of the Ant Group IPO, it was seen to be significant. So disorderly expansion of capital. So काफी सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं चाइना में भी एंड ग्लोबली भी अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट की, सो जब हम बात करते हैं चाइनीज इकोनॉमीज एबिलिटी टू बी ट्रूली इनोवेटिव while party wants to control what the capitalist can and cannot do. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वी आर सीइंग टसल. सो 2013 में ये बोला गया कि जो मार्केट्स है वो ग्रेटर रोल प्ले करेंगी जब हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की. बट क्या ये एक्चुअली में हुआ कि नहीं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एंड इसको बेसिकली ये जो रिफॉर्म्स या जो अनाउंसमेंट की गई थी इनको फिर वापस रोल बैक भी कर दिया गया था. सो अगेन चाइनीज इकोनॉमी में सिंस इट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं. सो चाइना में जब हम बात करते हैं जो अभी करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है, चीजें अनफोल्ड हो रही हैं ग्रेजुअली, तो कहीं ना कहीं 2015 में चीजें स्टार्ट हुई. एंड उस टाइम पे वी कैन से कि दिस वाज अंडर कंट्रोल जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पे की जा रही थी, अर्बनाइजेशन पे स्पेंडिंग की जा रही थी. सो ट्रेड वॉर, उसके बाद अगेन जो ग्लोबली प्रॉब्लम हुई अगेन वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हमें देखने को मिला एंड स्टिल कहीं ना कहीं वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. Then policies like de-risking and China plus one strategy that seeks alternative production destinations, investments जो हो रही थी चाइना में, they are also looking for alternative investments and not just completely being dependent upon China. So इसकी वजह से China plus one strategy यहाँ पे हमें और ज्यादा acceleration देखने को मिला because of the trade war. Then COVID-19 आया, उसके बाद चाइना में जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसकी बात करें तो अगेन इसकी वजह से भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है. एंड जब पूरी इकोनॉमी को अनलॉक कर दिया गया एंड दिस पॉलिसी वाज विथड्रॉन, जीरो कोविड पॉलिसी, तो अब हम बात करते हैं करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ चाइना. तो वी आर क्लियरली सीइंग कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्लो डाउन. एंड चाइना के लिए जब हम रिकवरी की बात कर रहे हैं तो the experience or the journey, it has not been so smooth. So हम देखने को मिला कि जो फूड सप्लाईज थे that was not available urban areas में. एंड इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो दे फियर फॉर एन इवन बिगर स्लम्प, मतलब आने वाले टाइम में और चीजें बहुत खराब हो सकती हैं. सो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं चाइना में, दे हैव बीन अनदर प्रॉब्लम फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप. सिंस अगेन अभी हमने बात करी इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर डिपेंडेंट. तो डिसीजंस है अगेन वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास के द्वारा लिए जाते हैं. तो इस केस में जब हम बात करें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम जो है इनके लिए दैट इज फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप. सो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए हाउ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन चाइना. So they are having assured contracts and political networks. इसका मतलब कि they get away by political bargain and without changing their methods of operation. तो जो actual problem है उसको वो again bypass कर जाते हैं because of the political affiliations you can say. So अगर यहाँ example ले कि social security benefits भी वो provide करते हैं to several 100,000 working and retired workers, जिसका मतलब कि they are that touching them is a politically सेंसिटिव इशू. तो अगेन अगर आप बात करते हो, अगर आप जनरली भी सोचो कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को अगर आप चेंज करते हो, उनको कम करते हो, रिड्यूस करते हो, स्टॉप कर देते हो, तो अगेन ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है, इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस भी देखने को मिल सकते हैं. देन चाइना में जो हाउसिंग बबल एक्सपोज हुआ विद द एवरग्रांड क्राइसिस 2020-23 के बीच में जो हमें देखने को मिली, वहां से भी काफी सारी चीजें एक्चुअल रियल प्रॉब्लम निकल के आई. And again, ये भी जो symptoms था, it was symptom of misregulation and path dependency, which may be considered as symptomatic of the ills that affect the Chinese economy in general. And then talk about middle income trap. It has been another long-term concern.
as well as China's desire to climb up the value chain also. So ये एक दूसरी प्रॉब्लम है. So इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी जो चीजें हमें 2015 के बाद देखने को मिली, Chinese economy, it has been growing at an estimated rate of 5%. It would mean adding more value when compared to India's projected growth rate of even 6.1% for 2023, given कि जो size difference इतना ज़्यादा है दोनों economies के बीच में. So for India, it may mean cooling off of the prices of crude oil and बाकी other commodities like cement, steel, for which China, it has been gigantic market. And अगेन ये एक रिपरकशन इंडिया के लिए भी हो सकता है. अगर चाइना में स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो इन स्टील एंड सीमेंट के प्राइसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिवली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है. सो वेदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इट वुड चेंज चाइनाज परसेप्शन ऑफ इट्स राइज एंड इट्स रिस्क एपेटाइट ऑन द बॉर्डर इज अनदर इम्पोर्टेंट इशू टू वॉच फॉर. सो लेट्स सी आगे चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो अगेन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यू हैव टू इंश्योर सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड फूड अवेलेबल रहे, and suggests कि even airdropping essential items in areas affected by the ethnic violence after Justice Mittal committee says कि situation might turn dire because supplies dwindle away due to roadblocks, जो again tribal community and majority community बीच में हमें देखने को मिल रहा है. तो because of these roadblocks, again air supplies के through up essential items की availability maintain करना important है. तो starvation risk exist करता है because tribal community जो है उनको इन चीजों का access नहीं मिल पा रहा है. And then another topic is seeing कि Naresh Goyal, who is the founder of Jet Airways, he has been arrested by Enforcement Directorate in bank fraud case. So the case, it is loan fraud का जो amount it is estimated to be around 538 crore rupees of the Canara Bank. So अगर शेयर मार्केट की मैं बात करूँ तो कैनरा बैंक के जो शेयर प्राइसेस है उस पर आपको डायरेक्टली फॉल देखने को जरूर मिल सकता है. So 7 years कंप्लीट हो चुके हैं मिशन गंगा को चलते हुए, वर्क करते हुए, बट स्टिल अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है. तो आप बात करोगे सक्सेस ऑफ दिस मिशन या इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मिशन, कितना टू व्हाट एक्सटेंट जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल कर पाया है. एंड अगेन नहीं फुलफिल कर पाया है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए. सो ट्रीटमेंट प्लांट्स capable of treating just 20% of the sewage spewing into the river set up so far. So सिर्फ 20% तक ही आप ट्रीट कर सकते हो, ऐसे प्लान्स अभी तक सेटअप किए गए हैं. एंड एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इसको 33% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय 2024 एंड 60% बाय 2026. तो 7 years कंप्लीट होने के बाद भी वी आर जस्ट एट 20%. So center says it will only build the capacity for 7,000 MLD. States they must set up the rest of them. So 7 years since the government unveiled its ambitious rupees 20,000 crores national mission for clean Ganga, it has installed treatment plants. Joseph, again 20% तक ही treat कर सकते हैं सीवेज को. यहाँ पे हमने बात करी कि जो आगे अगेन कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी उसके लिए क्या टारगेट्स हैं. एंड कैलकुलेशंस दे आर प्रमाइज्ड ऑन सीवेज to the tune of 11,700 million liters per day that is being generated in 5 states. So 5 states कौन सी? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal, through which the river courses.
एंड सेंटर का कहना ये है कि इट वुड बी सेटिंग अप द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो केपेबल होंगे ऑफ ट्रीटिंग अबाउट 7,000 mld ऑफ द सीवेज बाय 2026। तो जो बाकी है अब वो बर्डन है स्टेट्स के ऊपर। सो यहाँ पे अगेन अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट की फंडिंग भी रिक्वायर्ड है, इतना पैसा क्या स्टेट्स अगेन जो बाकी गैप बच गया उसको क्या स्टेट्स आर दे फाइनेंशियली केपेबल टू कंप्लीट दैट टारगेट। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव था नमामि गंगे मिशन का, इट इज टू इंश्योर कि नो अनट्रीटेड सीवेज इट फ्लोज इनटू द रिवर। तो ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसीलिए हम इसके अराउंड बात करें, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए उनकी कैपेसिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सो उसके अराउंड चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो अगेन वहां पे हमें काफी मेजर शॉर्टफॉल देखने को मिल रहे हैं। सो अगेन वी कैन से कि कोई ऐसा हमें मेजर कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। स्टेट्स एज पर देयर कैपेसिटी वो अपने टारगेट्स को फुलफिल करने में लगे हुए हैं, एंड सेंटर ने सिंपली बोल दिया है कि वो न तक दे वुड बी इंश्योरिंग, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है। एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स आई लैंड एक्विजिशन में भी, तो ये भी कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से अगेन हमें स्लो प्रोग्रेस देखने को मिली है। एंड दूसरी साइड स्टेट्स का जो मानना था कि जो ट्रीटमेंट प्लान्स है वो कम्प्लीटली सेंटर उनको बनाएगा। तो स्टेट्स का ये था कि दे विल बी वर्किंग हार्ड टू करेक्ट दैट, एंड नाउ मोस्ट ऑफ द सैंक्शन प्रोजेक्ट्स आर दे आर प्रोग्रेसिंग वेल। सो उत्तराखंड में वे सीइंग की हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स हैं दैट हैव बीन सेट अप या उनको अपग्रेड किया गया है। तो मिशन की जो again cost is rupees 20,000 crores. So government it has so far given in principle approval for the projects worth rupees 37,000, around approximately 400 crores of rupees, जिसमें से 14,750 crore rupees has been released to the states for infrastructure work. बट जब हम बात करते हैं अब रिवर की जो वाटर क्वालिटी है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो इट इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ नोटिफाइड प्राइमरी बेदिंग वाटर क्वालिटी। सो अगेन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड वी आर सीइंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, तो वो भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहे हैं कि यस वी कांट से कि द प्रोजेक्ट हैज बीन अनसक्सेसफुल और इट हैज बीन अ फेलियर। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। वी टू मेंटेन अ बैलेंस, जो प्रॉब्लम्स हैं आगे के क्या टारगेट्स हैं 7 years में जो वर्क हुआ उसका क्या हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो अगेन इफ यू आर सीइंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, तो कहीं ना कहीं दिस इज अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द वाटर क्वालिटी अलोंग द गंगा। एंड डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 2,000 टू अबाउट 4,000। सो वी कैन से ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन हमें देखने को मिली है। एंड न्यू स्ट्रेचेस ऑफ रिवर में भी वी आर सीइंग प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स। एंड फिशरमैन भी जो है देर आल्सो रिपोर्टिंग इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ इंडियन कार्प, जो एक फिश स्पीसीज है which only thrives in clean water. तो again this is also indicating कि water quality में improvement बिल्कुल हुई है। सो कुछ पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम बात करते हैं कि क्या वाटर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। सो वन ऑफ देम इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड देन फीकल कॉलीफॉर्म। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं जो चीजें वर्क इन प्रोग्रेस हैं दैट इज वाटर क्वालिटी इंडेक्स, दिस इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस। जैसे कि वी हैव एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो अगेन वाटर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, बट जो पेस है वो काफी धीरे धीरे आगे मूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी बात कर सकते हो कि किसी हम एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा इतना बड़ा इकोसिस्टम है पूरा, रिवर्स का, ट्रिब्यूटरीज का, डिस्ट्रीब्यूटरीज का। तो अगेन इट विल टेक टाइम।
सो G20 कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स इंस्टॉल किए जाएंगे, सो अगेन यहाँ से कल्चर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं. सो फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू अष्टधाई, so these are going to grace the G20 corridor. So copy of Magna Carta, United Kingdom's famous Charter of Rights, 15th century bronze statue of Belvedere Apollo from Italy, and 18th century for Howled jar from China. They would be among the objects जो cultural significance को display करेंगे at the special cultural corridor, which will be set up at the venue G20 summit. And apart from this, India का जो contribution है, that would be the Panini's Ashtadhyayi, which is an ancient text. So physically they would be on the display, and so France would be sharing iconic painting of Mona Lisa, Germany, the Gutenberg's Bible, and Mexico statue of the deity Coatlicue. So different countries say we are having things. So August May we are seeing GST revenue. It eases to 3-month low of rupees 1.56 lakh crore rupees. So gross GST revenue increase हुआ है 11% year-on-year basis पे, as taxes जो goods import किए जा रहे हैं उसमें से हमें taxes में increase देखने को मिल रहा है. But still जो GST revenue आया, that has been recorded 3.65% lower level पे. तो अगेन जब हम इंडियन इकोनॉमी की भी बात करते हैं, राइट नाउ क्या सिचुएशन है, तो अगेन वी आर गेटिंग मिक्स्ड सिग्नल, बट ओवरऑल द पिक्चर इज पॉजिटिव. सो बाय एंड कलेक्शंस, इट विल हेल्प द जीएसटी काउंसिल लोअर द टैक्स रेट. तो अभी जैसे हमने जीएसटी रेवेन्यू की बात करी है, हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर बाय एंड कलेक्शंस देखने को मिलेंगे जीएसटी टैक्स रेवेन्यू में, तो जीएसटी काउंसिल सोच सकती है जो टैक्स रेट है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जो पेंडिंग जीएसटी रिफॉर्म्स है उसमें ये बात की जाती है रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर. तो वो तभी पॉसिबल है अगर जो करंट सिस्टम है, जो जीएसटी रेवेन्यूज है, वो बायंट रहे आने वाले टाइम में भी. एंड फैक्ट्री एक्टिविटी की बात करें तो दैट राइजेस टू नियरली 3-year high. So we are seeing good amount of momentum, strong recovery even in factory activity. The manufacturing firms, जो order books हैं, they have boosted output levels. They have also expanded at the fastest pace. So purchasing managers index, again ये आपको पता होना चाहिए, it rose to 58.6 last month. And apart from this, input cost जो है वो although increase हुई हैं, तो थोड़े बहुत challenges problems हैं. Overall we can't say कि ऐसे मतलब सारी चीजें आपको at the same time support में ही मिलेंगी, कुछ against भी होंगी and कुछ आपको favor भी करेंगे. तो input cost भी increase हो रही है. Firms, they have replenished inventories at the second highest pace, and they have also restrained from raising the selling prices. तो अगर दे आर रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम रेजिंग द सेलिंग प्राइसेस, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो उन्हीं को फेवर करेगा, क्योंकि अगर वो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो चीजें अगेन घूम फिर के वो उनको मिलती हैं इन द टर्म्स ऑफ हायर इनपुट कॉस्ट. एंड देन अगेन ऑटो सेक्टर में भी वी आर सीइंग कि जो होलसेल्स numbers हमें मिले हैं, we are seeing a rise in that also. This is again seasonal in nature because of the festive season. Rural economy की बात करें तो two-wheeler sales, they provide a glimpse of the financial health of India's rural economy and demand in the country's largest consumption segment. So यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है demand from the lower middle income households. टेक्निकल टेक्सटाइल्स, अगेन इसके ऊपर भी हैव अ डेडिकेटेड मिशन आल्सो, एंड आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए. सो एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड क्रिएट किया जाएगा बाय द एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल्स. सो एक्सपोर्ट ग्रोथ में भी अगेन टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इंडिया से जो मेजर मार्केट्स हमारे लिए यूएस, जापान एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज, दे आर बाइंग पैकेज
textile products from India, which is the main driver of the technical textile exports at present. So 6% growth हमें देखने को मिल रही है. Coming to Financial Express, so let's see. So export push की अगर हम बात करें तो districts they have huge potential for increasing the exports. Only 70 districts ऐसे हैं जो account करते हैं for 80% of the total exports of the country. Only 70 districts. So government will go to the districts to enhance the exports. So ये micro level पे हम बात कर सकते हैं हमारी जो strategy है for boosting exports. तो यहाँ पे again, as we talk about one district, one product, then buying of local things या एक district का जो जिस प्रोडक्ट में अगेन दे हैव दी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा. तो अगेन उसके आगे हमें फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. सो ऑयल इंपोर्ट की अगर हम बात करें शेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो रशिया से वी आर सीइंग it falls, but Saudi Arabia again it regains the share. So India's import of the Russian oil fell to the lowest in 6 months, and because of this cut down by Russia in the oil exports, it paved the way for Saudi Arabia to regain its share in Indian crude basket. तो यहाँ पे आपको टॉप 4 कंट्रीज का अगेन क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री की क्या पोजीशन है, कहाँ से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. सो हाईएस्ट हम सबसे ज्यादा अभी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जो हमें मेजर शिफ्ट देखने को मिला दैट वाज बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर. तो अगस्त में हमें देखने को मिल रहा है कि इराक एंड सऊदी अरेबिया, बहुत लंबे टाइम के बाद ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि जॉइंटली अगर हम उनका कंबाइन करके देखें शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, दैट हैज बीन रिकॉर्डेड एट हायर लेवल देन रशिया इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो रशिया का जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, तो दैट इज 34% जो इंडिया की क्रूड ऑयल नीड्स है वो रशियन इम्पोर्ट से फुलफिल हो रही है. सऊदी अरेबिया की इट इज नियरली डबल्ड इट्स शेयर फ्रॉम 10.6% जो जुलाई में था 18.9% पे है अभी इन द मंथ ऑफ अगस्त. देन इराक के केस में भी वी सॉ मार्जिनल इंक्रीज इन इट्स शेयर विच इज एट 19.9%. सो अगर हम टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो that has been declining. So it has declined by 5% on monthly basis. And it is expected कि अक्टूबर के मंथ से जो ऑयल डिमांड है वो इंक्रीज होगी तो इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे. एंड इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है. सो वी डिपेंड अपॉन 85% और जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हम उसको इंपोर्ट करते हैं. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लॉन्गर टर्म में. Then fugitive economic offenders की बात करें, we have a dedicated bill on this and India seeks cooperation on fugitive economic offenders. The G20 summit की बात करें, so this is also one of the agendas. And India has suggested to all the G20 nations to actively cooperate to deal comprehensively and efficiently with the fugitive economic offenders as part of the action against them and recovery of the assets. सो इंडिया का कहना ये है कि जो मेंबर नेशंस हैं हमें एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए दैट डिनाइज एंट्री एंड सेफ हेवंस टू ऑल द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स. तो इसके लिए ऑब्वियसली ग्लोबल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, एक ऐसा मैकेनिज्म
कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो दे आर ट्राइंग टू फ्ली देयर होम कंट्री, तो उनको बाकी कंट्रीज में एंट्री ना प्रोवाइड की जाए, उनको सेफ हेवन्स ना प्रोवाइड किए जाए। Then principles of United Nations Convention Against Corruption. We have United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, especially related to international cooperation that should be fully and effectively implemented. And then Financial Action Task Force, India suggested FATF, which is a global watchdog for the money laundering and terror financing, should be called upon to assign priority and focus to establishing international cooperation that leads to timely and comprehensive exchange of information between competent authorities and financial intelligence units. तो यहाँ पे again आपको पहले identify करना है कौन से different stakeholders हैं। तो obviously countries तो हैं, एंड कंट्रीज में भी आप अब सारी कंट्रीज नहीं इंक्लूड कर सकते हो, आपको अगेन असेस करना पड़ेगा कि सेफ हेवन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज में देखा जाता है, कौन सा ट्रेंड है। बात करें कि कहाँ पे these offenders they try to hide themselves, एंड उसके अलावा FATF एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। Financial intelligence units are also an important part of it. So auto sales की हम बात कर चुके हैं, we are seeing increase in the auto industry also their sales, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में again मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को भी बूस्ट करेगा। एंड अगेन जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की हम बात करते हैं, दैट विल आल्सो गेट मोर स्ट्रेंथेंड। Coming to Indian Express newspaper, so NASA spots the crater left by crashed Luna 25. This is a picture of it. So you can see in the impacts, climate change, Japan had the hottest summer on record. So we're seeing temperature has increased by 1.76 degrees Celsius. So इतनी ज्यादा डेविएशन हमें देखने को मिल रही है। अगेन अब एटलस आप ओपन कर सकते हो डिफरेंट आइलैंड्स जो हैं एंड जो डिफरेंट सीज लोकेटेड है, तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता होना चाहिए। अगेन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। सो the proper will be having editorial on this, will be doing the critical analysis. So as you can see here कि एक challenge क्या है of getting the simultaneous elections done. Constitution में क्या changes required हैं, new laws हमें बनाने पड़ेंगे, and even post poll issues भी कुछ होंगे। तो ये 3 major broad headings हो गई। So यहाँ पे अगर हम बात करें sweeping changes to the constitution that would be required, in terms of that we see कि altering the tenure of Lok Sabha or the state assembly to allow the simultaneous polls, वो हमें करना पड़ेगा। तो constitutionally we see कि 5 साल के लिए elections अगेन जो रिजल्ट्स होते हैं दे रिमेन वैलिड। तो 5 साल का जो टेन्योर होता है, हर 5 साल में भी एक कंडक्ट द इलेक्शंस पीरियोडिकली। तो अगेन इसको सिंक में लाने के लिए जो लोकसभा की टर्म है और जो स्टेट असेंबली की टर्म है, उसमें कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी पड़ेगी। आर्टिकल्स 83 एंड आर्टिकल 172 वो फिक्स करते हैं टर्म ऑफ 5 years, एंड उससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकती है ऑफ लोकसभा एंड दी असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगेन these 2 articles would be amended, and कुछ exceptions हैं apart from the provisions। अगेन जब बात करते हैं हाउस को
प्रीमेच्योरली डिसॉल्व करना, तो यहाँ पे भी अगेन कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। देन पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 14 एंड 15 दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस, उसमें भी अगेन हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू गेट simultaneous elections done. And again, new laws would be required. Opinion of people, that also matters. बात करते हैं conducting one nation one election. सो आर्मी का सोल्जर्स को ये कहना है कि डू सोशल सर्विस जब आप छुट्टी पे होते हो, एंड बी द एम्बेसडर्स फॉर नेशन बिल्डिंग। मतलब अपार्ट फ्रॉम सर्विंग एट द बॉर्डर, सर्विंग द कंट्री, सोल्जर्स लोकल लेवल पे भी सोशली भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगेन, moving ahead on this idea, all army formations across the country, they are expected to provide feedback on this effort every quarter. So again, this is here we're emphasizing on gainfully utilizing your time जब soldiers leave पे होते हैं in order to perform various social service duties. So again, अब हर एक soldier को एक domain choose करना पड़ेगा as per their interest and competency, जो उनको comfortable लगता है, जिसमें वो और ज़्यादा ना again time and efforts and as a service devote करना चाहते हैं, and also that would be influenced as per the local community's demand as well. So again, since soldiers को पता होगा कि लोकल लेवल पे अगेन क्या प्रॉब्लम है, उनके विलेजेस में क्या प्रॉब्लम है, तो वो उस डोमेन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उससे चीजें और अच्छे से सॉल्व की जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉडर लेवल पे बात की जा रही है, पैन इंडिया लेवल पे बात की जा रही है, तो वो चेंज भी विजिबल हमें जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं फिर एक ये काउंटर पॉइंट भी आ सकता है कि सोल्जर्स को जो लीव दी जाती है, वो टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, and address their personal commitments. So adequate scope exist करता है, still they can take out time and utilize it gainfully. So again, this is a very important topic from science and technology both. So LIGO की हम बात कर रहे हैं, an eye on the universe from Bengali in Maharashtra. So यहाँ पे you can see कि LIGO it is being installed. So as India makes its mark on the moon, it is set to get as close to the sun also. आज we'll be seeing today Aditya L1 will be launched. So the journey to unlock the deep mysteries in space has just begun. So an arid stretch Hingoli mein in Maharashtra. It is a land that is said to be the first to be the site for one of the most ambitious science programs in the world. So LIGO जो है gravitational waves observatory है, and this is a third of its kind in the world. So world में सिर्फ 3 LIGO observatories हैं, and one of them is in India. So यहाँ पे again सारे technical aspects explained हैं, you can just go through it. So हमारे लिए gravitational waves को study करना क्यों important है?
तो जब हम बात करते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है ग्रेविटेशनल वेव्स में, उसको डिटेक्ट एंड एनालाइज करना, वो हमें हेल्प करेगा टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन अ वे नेवर बिफोर पॉसिबल, जो अगेन एस्ट्रोनॉमर्स को सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, साइंटिस्ट को भी फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ अनसीएबल वंडर्स। सो अगेन वहां से अगेन एक न्यू स्टोरी स्टार्ट हो सकती है जिन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है, सो दैट वी कैन गेट टू नो थ्रू एनालाइजिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स। सो अगेन कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स अकर होती है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ब्लैक होल मर्जर जब होता है, दैट इज वन ऑफ द वेज, एक पॉसिबल तरीका है जब ग्रेविटेशनल वेव्स अकर होती है। तो यहाँ पे यू कैन सी ब्लैक होल्स, टू ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो रही है जब दो ब्लैक होल्स मर्ज कर रहे हैं। सो इसको हम स्पेस टाइम भी बोलते हैं। And this is the structure of the LIGO observatory, or LIGO detector. So laser light, it is sent into this instrument to measure क्या changes हैं in the length of the two arms. These are the two arms extending. And second is एक beam splitter installed है जो split करता है light and sends out two identical beams along the two 4 kilometer long arms. And यहाँ पे again, this is the light detector. थर्ड इज जो लाइट वेव्स हैं वो बाउंस करती है फ्रॉम दीज मिरर्स एंड रिटर्न। तो यहाँ पे एंड में मिरर इंस्टॉल्ड है दोनों आर्म्स के एंड पे, फिर ये बाउंस बैक करती है एंड दे रिटर्न बैक। देन जो ग्रेविटेशनल वेव इफेक्ट है आर्म्स में डिफरेंटली, अगेन डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, सो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। व्हाइल वन इट एक्सपैंड्स, जो दूसरा है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एज दे आर पास्ड बाय द पीक्स एंड ट्रोज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। देन नॉर्मली जो लाइट है वो रिटर्न करती है अनचेंज्ड टू द बीम स्प्लिटर फ्रॉम बोथ द आर्म्स एंड दे आर रिसीव्ड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे अगेन दोनों आर्म्स के एंड पे इट इज रिसीव्ड, एंड इफ द आर्म्स दे आर डिस्टर्ब्ड बाय ग्रेविटेशनल वेव, तो जो लाइट वेव है इट विल हैव ट्रेवल्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस, so that's how we'll be able to detect gravitational waves. सो लीगो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 4 फैसिलिटीज अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, 2 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हैं, 2 यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स यूएसए में है, ऑब्जर्वेटरीज लोकेटेड इन फेयरली आइसोलेटेड एरियाज ऑफ वॉशिंगटन एंड लुजियाना यूएसए में। Apart from this, 2 primary research centers, they're located at California Institute of Technology and the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. सो ऑयल इम्पोर्ट्स शेयर चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, इसको हम क्रिटिकली देख चुके हैं। फैक्ट्री आउटपुट के बारे में हम बात कर चुके हैं, दैट इज बीन रिकॉर्डेड एट 3-year हाई। स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो कल हमने इसके बारे में बात करी थी, तो अगेन इसको अब हम ऑब्जेक्टिवली असेस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्पेशल सेशन द पार्लियामेंट जो होगा बिटवीन सितंबर 18 to 22। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो टर्म है समटाइम्स इट रेफर्स टू सेशंस जो गवर्नमेंट कन्वीन करती है फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स, लाइक इफ यू वांट टू कमेमोरेट पार्लियामेंट्री और नेशनल माइलस्टोन्स, तो इस पर्पस के लिए भी स्पेशल सेशन किए गए हैं प्रीवियसली। सो सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 1952 टू 2023, so between 2002 and 21 लोकसभा एवरेज्ड जस्ट 67 वर्किंग डेज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पूरा ट्रेंड है इट इज डिक्लाइनिंग, दोनों राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। सो पार्लियामेंट्री जो नॉर्मल जो सेशंस होते हैं कब कब होते हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें
तो अगेन इसके लिए भी कोई फिक्स्ड कैलेंडर ऑफ सिटिंग्स नहीं है। 1955 में लोकसभा कमेटी थी जो उसने प्रपोज किया टाइम टेबल क्या होगा फॉर द पार्लियामेंट्री सेशंस। तो उसमें रिकमेंडेशन आया कि जो बजट सेशन था पार्लियामेंट वो फरवरी में किया जाएगा, देन वी हैव द मॉनसून सेशन जो जुलाई में स्टार्ट होगा, एंड देन विंटर सेशन भी। तो यहाँ पे विंटर सेशन वुड बी देयर इन द लास्ट सेशन ऑफ द ईयर जो रहेगा जो नवंबर में होगा। सो गवर्नमेंट ने इस कैलेंडर को अग्री किया बट इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। मतलब आज के टाइम में होते ये 3 सेशंस ही हैं, जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। देन डिसाइड कौन करता है कि पार्लियामेंट जो सेशन होगा वो कब होगा। सो ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है क्या डेट होगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस क्या होंगे, एंड जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो ये डिसीजन लेते हैं। So right now it has 10 ministers, including those from defense, home, finance, agriculture, all these areas who are involved. And law minister and minister of state for external affairs, वो special invitees रहते हैं to this committee. So president को inform किया जाता है about this committee's decision. जो कमेटी है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या डिसीजन है। देन प्रेसिडेंट समन करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को टू मीट फॉर द सेशन। तो डिसीजन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, बट प्रेसिडेंट जो है वो बस समन्स भेजते हैं टू एमपीज की द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन कब से कब तक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है ऑन दी पार्लियामेंट्री सेशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है टाइम पीरियड। वो ये नहीं बोलता है कि एक साल में 3 सेशंस किए जाने चाहिए। पार्लियामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो से बोलता है ये स्पेसिफाई करता है कि 6 months शुड नॉट इलैप्स बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशंस। तो ओनली टाइम पीरियड की बात की जा रही है कि 2 पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये भी एग्जाम्पल है कॉलोनियल लेगेसी का, and this was borrowed from Government of India Act of 1935. So B.R. Ambedkar sir ने बोला कि जो purpose है of summoning the Central Assembly it was only to collect the taxes, and the once a year meeting was for the government to avoid scrutiny by the legislature. तो ये पहले की बात हो रही है जो पहले again follow किया जाता था routine. So Constituent Assembly reduced this gap time between the sessions to 6 months. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे डिसीजन लिया, अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सो राज्यसभा लोकसभा कैसे अगेन उनके सेशंस किए जाते हैं। सो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें जो सेंट्रल असेंबली थी इट मेट फॉर अ लिटिल मोर देन 60 days इन 1 year। फिर ये नंबर इंक्रीज हो गया फॉर 120 days एक साल में इन द फर्स्ट 20 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो सिंस देन जो सिटिंग डेज हैं ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर वो डिक्लाइन हुए हैं। ये ट्रेंड हमने यहाँ से समझ लिया है। सो मल्टीपल टाइम्स पे ओकेजन्स हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हुए जहां ये रिकमेंडेशन निकल के आएगी पार्लियामेंट शुड मीट फॉर मोर देन 100 days, एंड इवन सिमिलर रिकमेंडेशन की गई बाय द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जब हम इंडिविजुअल एमपीज की बात करते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल जिसमें ये स्टिपुलेट किया गया कि यू नीड टू इंक्रीज द सिटिंग डेज फॉर द पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं सबका एक ही चीज की तरफ इंडिकेशन है। सो 1955 में रिकमेंडेशन लोकसभा एक्सेप्ट कर दी गई एंड पार्लियामेंट वुड बी इन सेशन फॉर 8 months every year. So US Congress and parliaments of Canada, Germany, UK, they are in session throughout the year and their calendar of sitting days वो fixed हो जाता है, उस पर डिसाइड कर लिया जाता है during the beginning of the year. So बात करते हैं स्पेशल सेशन क्या होता है। तो ये हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन इस टर्म को यूज नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये टर्म नहीं देखने को मिलेगी। सो टर्म इसको हम जब यूज करते हैं स्पेशल सेशन का फिर मतलब क्या हुआ, तो अगेन हमने देखा फॉर कमेमोरेटिंग पार्लियामेंट्री और नेशनल माइलस्टोन्स के लिए प्रीवियसली स्पेशल सेशंस किए गए हैं। सो दोनों हाउसेस को अगर सेशन में होना है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दे शुड चेयर देयर प्रोसीडिंग्स। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस इट वुड बी लिमिटेड and procedural devices like question hour it would not be available to MPs during special session. तो ये power है during in the hands of the presiding officers. Then article 352 जो है that is proclamation of emergency of the constitution वो भी refer नहीं कर, it does refer to the
स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस। तो इस आर्टिकल में स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस की बात की जा रही है, बट अगर हम क्लियरली बोले स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। So Parliament added the part relating to special sitting through the Constitution 44th Amendment Act of 1978. So जो इसका purpose था, that was to add safeguards to the power of proclaiming emergency in the country. And it specifies कि if a proclamation of emergency वो issue किया जाता है and Parliament अगर session में नहीं है, तो then 1/10 of the Lok Sabha MPs they can ask the President to convene a special meeting to disapprove the emergency. So इस purpose के लिए भी again special sitting of the House is called for. Then again Aditya L1 mission main objectives हम देख चुके हैं, space weather alerts, special mission है L1 and afterwards, so you can just go through it once. So simultaneous elections, since we're talking about this, so again, infrastructurally भी हमारे लिए कुछ challenges हैं, like 3 million EVMs हैं. अब ensure करना कि simultaneous elections, general elections भी और state assembly elections के लिए आपको कितने EVMs चाहिएंगे. Then massive security and funds, they would also be required. ये भी एक challenge रहेगा. And इसके अलावा हमने बात करी starting में कि constitutional amendments भी हमें करने पड़ेंगे. So voting machines की अगर हम बात करें, यहाँ बात करें logistical challenges की, so voting machines, they will be to be able to hold these simultaneous elections, we need around 30 lakh EVMs according to the estimates. So again जब हम बात करते हैं feasibility of simultaneous polls, तो एक ये point जरूर आएगा. इसके अलावा So even Election Commission of India वो भी ये recommendation दे रहा है since 1982 कि amendment किए जाने चाहिए so that again simultaneous elections conduct किए जा सके. तो it favors simultaneous elections. So again challenges की हम बात कर रहे हैं, logistical challenges specifically. तो पहला हो गया कि हमें कितनी EVMs required हैं. Again अब हम VVPATs की भी बात करते तो VVPATs भी हमें कितनी चाहिएंगी. तो उसके लिए अगेन उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए. सो अगेन अब वो कहाँ से आएगा, क्योंकि अगेन फिस्कल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं. So around 30 lakh EVMs they would be required to conduct simultaneous elections. Then increased cost. So here when we talk about increased cost, so ECI it has over the years flagged कि it would take to hold simultaneous, what would it take to hold the simultaneous polls? Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances Law and Justice ने नोट किया है, 2015 में रिपोर्ट किया गया कि बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जो ECI ने भी पॉइंट आउट करी हैं. तो few of them is it would require large scale purchase of EVMs and VVPATs. तो अगेन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की ही यहाँ बात की जा रही है. एंड अगेन इंक्रीज्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे आपको पैसा भी चाहिए, उतना टाइम भी चाहिए आपको, इतनी लार्जर स्केल पे अगर आपको अगेन इलेक्शंस कराने हैं, दैट टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो कॉस्ट चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं. एंड देन इसके अलावा एक और चैलेंज है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस किए जाते हैं तो जो ईवीएम्स होंगी दे वुड बी यूज्ड फॉर 3 इलेक्शंस एज देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 15 years. तो अगेन यहाँ पे भी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए इंक्रीज हो जाती है ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, 5 years का गैप रहेगा, तो 15 साल में सिर्फ ईवीएम्स जो है 3 बार ही यूज होंगी. तो उसके बाद दे वुड बी डिसफंक्शनल, हमें फिर ये सिमिलर एक्सरसाइज फिर रिपीट करनी पड़ेगी. सो जो कॉस्ट है वो हमें बहुत ज्यादा पड़ेगी. एंड देन अगेन जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल फोर्सेस और जो पोल स्टाफ है वो भी अब हमारे पास एडिक्वेट नंबर में होना चाहिए. सो जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रल फोर्सेस की टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन ऑर्डर टू कैरी आउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो वो भी एक मेजर चैलेंज है. देन मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑल्सो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है.
बट एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जरूर साइमल्टेनियस पोल्स के। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, अब जब अभी जो हमारा करंट सेटअप ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस, तो अगेन बीच बीच में वी हैव स्टेट असेंबली इलेक्शंस, तो कभी कहीं उनको डिप्लॉय करना पड़ता है, कभी किसी दूसरी स्टेट में, तो यही चलता रहता है टाइम एंड अगेन। एंड अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस किए जाएंगे तो हर 5 साल में सिर्फ एक बार ही उनको इस पर्पस के लिए आना पड़ेगा, तो एक ये बेनिफिट भी है। सो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम है, एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर है, वो बचेगा। बट जो ये चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनको मीट नहीं कर सकते या ये इम्पॉसिबल है। सो अगर हम इलेक्शंस हर 3 से 4 महीने में कहीं ना कहीं इंडिया में किसी कॉर्नर में इलेक्शंस होते हैं, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस करना हमारे लिए कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। So, in a league of his own, we can learn a lot from this personality. Despite being unwell and fatigued, Neeraj Chopra rises to the occasion to book Diamond League final berth. Matlab, so many challenges, and still he is just moving forward. So that's all for today. Thank you so much for joining us. And I hope you're liking the daily analysis videos and the important topics that we're taking up. So do share your feedback in the comment section. And if you have any kind of doubt, and do subscribe to the channel and keep watching.